Hello guys, welcome back. So we are in the fifth video of this Java interview question series, and we have already covered four videos in which the first two are related to basic Java interview questions, and the next two videos are of the questions level of intermediate type. Now in this fifth video we will discuss Java advanced interview questions. I hope you all have watched the previous videos before starting this one. So question number 70. Although inheritance is a popular object-oriented programming concept, it is less advantageous than composition. Explain. So we need to explain the reason why inheritance is less advantageous than composition. So inheritance lags behind composition in the following scenarios. Let's see which all scenarios are there in which inheritance lags behind the composition. So multiple inheritance is not possible in Java. Java में multiple inheritance नहीं होता. Classes can only extend from one super class. सिर्फ एक super class से ही हम अपनी किसी particular sub class को extend कर सकते हैं. In cases where multiple functionalities are required, for example, to read and write the information into the file, the pattern of composition is preferred. The writer as well as reader functionalities can be made use of by considering them as private members. We can consider them as private members, the reader and writer both. Next, composition assists in attaining high flexibility and prevents the breaking of encapsulation. Encapsulation को break करने में prevent करता है and इसमें बहुत ज़्यादा flexibility provide करता है composition. And unit testing is possible with composition and not with inheritance. Now whenever a Java developer wants to test a class composing a different class, then mock object can be created for specifying the composed class to facilitate testing. So for testing purpose also, to test a different class, the mock object can be created for signifying the composed class. And this technique is not possible with the help of inheritance. Now we can't create any mock object in the case of inheritance. So that's why composition is at a higher level than inheritance, or we can say it is more advantageous than inheritance, as the derived class can't be tested without the help of superclass in inheritance. So to test a subclass, we need to test first of all the derived class. Okay, so to test a derived class, or we can say vice versa, we need to test the superclass. Next point is loosely coupled nature of composition is preferable over the tightly coupled nature of inheritance. So we can see that the nature of inheritance is tightly coupled, whereas the composition has a nature of loosely coupled. So these are two different cases, basically opposite to each other. So now let's take an example. Package comparison, in which we have defined a class top, public int start is a method, return 0. And then there is a class bottom extends top. This is a bottom class which extends top. And in this we have created a method named stop, and we are returning 0 to this method. Now in the above example, inheritance is followed. Now some modifications are done to the top class like this, as we have done some changes in this. So let's see what will be the impact of this. Now the next example is in which there is a class top and there is a method start, and it is returning 0, and the other method is stop, in which the body is empty. If the new implementation of the top class is followed, a compile time error is bound to occur in the bottom class. Incompatible return type is there for the top.stop function. There is a return type here is of type void, and here return type is int. So there is a mismatch of return type. Incompatible return type is there for top.stop. That's why it will throw a compile time error. Changes have to be made to either the top or the bottom class to ensure compatibility. However, the composition technique can be utilized to solve the given problem. So now we are using composition technique to resolve this above problem. Class is bottom, and top par we have created an object of top class, new top, and in this we have created a method named stop, and using that we are the object of class, we have
used, we have called this start and stop method and then returned 0 to this stop method. So this is an example of composition. And in the previous example, we have seen the coding problem of inheritance that can be faced in inheritance. Now, next question, question number 71. What is the difference between this and this operator? Okay, so these are basically two bitwise right shift operator. Although both operators look similar, but there is a minimal difference between these two right shift operator. We can see these two are similar type of operators, but there is a minimal difference between these two. Let's see what is the difference. This is a bitwise right shift operator and this is a bitwise right shift operator with trailing 0. This is a basic difference. Both are bitwise right shift operator only, but what this one will do, let's see. This operator shift each bit to its right position and this maintains this signed bit. साइंड बिट को मेंटेन करता है ये एंड हर एक बिट को राइट में शिफ्ट करता है, ऐसे शिफ्ट करता है राइट में. एंड ये क्या करता है, ये भी राइट में शिफ्ट करेगा. दिस ऑपरेटर ऑल्सो शिफ्ट्स ईच बिट टू इट्स राइट बट दिस डज नॉट मेंटेन दिस साइंड बिट. तो यहाँ पर जो खेल है वो सारा साइंड बिट का ही है कि कौन मेंटेन कर रहा है साइंड बिट को, कौन नहीं कर रहा है. दिस ऑपरेटर मेक्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू 0. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको 0 बना देता है. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं नंबर 1 है हमारा 8 एंड नंबर 2 है -8. नाउ सो द बाइनरी फॉर्मेशन जो होगा इन नंबर्स का वो देखते हैं. ऐसा होगा, बाइनरी फॉर्म में नंबर ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज +8 एंड दिस इज -8. ओके, इन बाइनरी फॉर्मेट. सो दिस ऑपरेटर, व्हाट डज दिस ऑपरेटर विल डू, वी हैव shift this by 1 bit, so it will shift each bit. Suppose it was initially like this, right? Now it has shifted to the right side one by one, and the number 2, it is shifted this way, right? Consider this thing and how it has shifted to the right side. That is of significance that we need to understand in this case. Now considering the another operator 8 shift by 1 bit, it is equal to this thing. So it has not maintained the most significant bit, this one. It has not maintained, but it has maintained. We can say 0 is there, so it has replaced it with 0, whereas in this case it has replaced it with 1. Okay, so that is the case. That is a major difference. This is the leftmost bit is the most significant bit and the rightmost bit is the least significant bit in a binary number. Now let's see question number 72. What are the composition and aggregation? State the differences. Composition and aggregation help to build has a relationship. As we have seen in the intermediate level question, there is a question related to is a relationship. Is a relationship is related to inheritance. Whereas let's see what is this has a relationship. It is basically a relationship between classes and objects. Composition and aggregation help to build such type of relationship between classes and objects, but both are not the same. They are not the same thing. In the end, let's understand with the help of an example. Consider the university as a class that has some departments in it. मतलब एक यूनिवर्सिटी को आप क्लास की तरह समझिए जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं. So university will be the container object and the departments in it will contain objects. Now in this case, if the container object destroys, then the contained objects will also get destroyed automatically. मतलब इसमें हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इस केस में क्या समझ रहे हैं, दैट इज अ यूनिवर्सिटी एंड दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं. तो अगर कंटेनर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, सपोज यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो कंटेनर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स कंटेन किए हुए हैं उस क्लास के अंदर, वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. सो दिस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन. इस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को ही हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं.
Now consider one more example. Suppose we have a class department and there are several professors objects there in the department. अब एक क्लास है डिपार्टमेंट एंड उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हम बोलेंगे प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, राइट? वो प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट में है ना। अगर डिपार्टमेंट क्लास को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा टू बाइंड विद द अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्रोफेसर के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होने के लिए फ्री हो जाएंगे, बिकॉज कंटेनर ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिपार्टमेंट के ओनली होल्ड द रेफरेंस टू कंटेन ऑब्जेक्ट्स प्रोफेसर, सो देयर इज अ वीक एसोसिएशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। अगर कहीं पर एसोसिएशन मतलब जो एसोसिएशन है अगर वो वीक है, ठीक है, वीक के केस में हम बोलेंगे एग्रीगेशन है। अगर एसोसिएशन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के जो बीच में बोल सकते हैं रिलेशन है, वो अगर एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के केस में हम बोलेंगे कि दैट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिशन। ये चीज हमें यहाँ पर समझनी है। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ इज द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ लिटरल। अगर हम किसी लिटरल से स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं और एक हम न्यू मेथड से यूज करके क्रिएट कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंट कैसे है, मतलब कैसे डिफरेंट एक दूसरे से। सो द आंसर इज व्हेन अ स्ट्रिंग इज फॉर्म्ड एज अ लिटरल विद द असिस्टेंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, it makes its way into the string constant pool as that so that string interning can take place। string को इंटर्न किया जा सके तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जहां पर स्ट्रिंग सेव होता है, स्टोर होता है, वहां पर अपनी वो मेमोरी असाइन हो जाती है उसको, और ये सेम ऑब्जेक्ट हीप में भी रेफरेंस हो जाता है बाय डिफरेंट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट स्ट्रिंग पूल में स्ट्रिंग चला गया है, स्ट्रिंग लिटरल, वेरेज उसका जो ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट वो हीप में भी रेफरेंस होएगा दूसरे स्ट्रिंग से अगर कंटेंट जो है दोनों का सेम है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, पब्लिक बुलियन बुल चेकिंग, एंड यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाया फर्स्ट एंड देन सेकंड बनाया डायरेक्ट, एंड अगर हमने चेक करा कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड तो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। नाउ जो चेकिंग फंक्शन है, ये जो चेकिंग फंक्शन हमने बनाया वो ट्रू रिटर्न करेगा as the same content is referenced by both the variables। दोनों ही वेरिएबल सेम आइटम को रेफरेंस कर रहे हैं। सपोज ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, और ये सेम मतलब सेम स्ट्रिंग को वो कर रहा है, पोजीशन मतलब पॉइंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, ऑब्वियसली चेकिंग फंक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे हमने फर्स्ट बनाया सेकंड बनाया, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिंग पूल है, ये हीप मेमोरी है। अब ये इंटरव्यू बिट हमने सेम चीज सब स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जावा मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएगा इसके लिए। जब सिंगल है तो स्ट्रिंग पूल में वो सेम चीज को ही पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर आंसर हमारा रिटर्न करेगा ट्रू। कन्वर्सली अगर हम बात करें, अगर स्ट्रिंग का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, हम न्यू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इंटर्निंग डज नॉट टेक प्लेस, तो इंटर्निंग वहां पर नहीं होती। ऑब्जेक्ट को मेमोरी हीप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में क्रिएट होता है इवन इफ द सेम कंटेंट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। सपोज अब देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास ये जो मेथड है चेकिंग सिमिलर टाइप का, इसमें हमने स्ट्रिंग बनाई फर्स्ट एंड स्ट्रिंग बनाई सेकंड, लेकिन यहाँ पर हमने न्यू स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसको बनाया, जैसे जनरली ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्ट्रिंग करके, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके, इट विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि सेम कंटेंट रेफरेंस नहीं हो रहा बाय दी बोथ द वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, स्ट्रिंग पूल बाय मींस ऑफ अ न्यू ऑपरेटर, पब्लिक बुलियन चेकिंग, ये हमारा मेथड था, हमने न्यू स्ट्रिंग बनाया, इंटरव्यू बिट, ये हीप में मेमोरी में क्रिएट हुआ, स्ट्रिंग पूल एम्प्टी है यहाँ पर इस केस में, और ये जो दूसरा बनाया वो भी हमारा हीप में चला गया डायरेक्टली। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये डिफरेंट उसको पॉइंट कर रहे हैं, सो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, हाउ इज द न्यू ऑपरेटर डिफरेंट फ्रॉम द न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर इन जावा। जावा में न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर से कैसे डिफर करता है, हमें इसका आंसर यहाँ पे बताना है। दोनों ही न्यू एंड न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ही दोनों यूज होते हैं। द डिफरेंस इज दैट व्हेन वी ऑलरेडी नो द क्लास नेम फॉर विच वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन वी यूज अ न्यू ऑपरेटर। हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं जब हमें क्लास का नाम ऑलरेडी पता होता है, बट सपोज हमें क्लास का नाम नहीं पता जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और वी गेट द क्लास नेम फ्रॉम द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। हमें CLI कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू
या फिर डेटाबेस के थ्रू हमें इसका क्लास का नाम मिलता है और हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उस केस में हम न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस. न्यू इंस्टेंस कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन दैट वी नीड टू हैंडल. ये जो न्यू इंस्टेंस कीवर्ड है कभी कभी एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, तो उसको हमें हैंडल करने की जरूरत होती है. इट इज बिकॉज देयर आर चांसेस दैट अ क्लास डेफिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा भी हो सकता है ना, क्लास डेफिनेशन एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, उस नाम की क्लास हो ही ना, तो उस केस में ये एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा, हमें इसको हैंडल करना होता है. ड्यूरिंग रन टाइम ये एक्सेप्शन जनरली थ्रो होता है. ओके तो इसलिए हमें इसको हैंडल करना होता है ट्राई कैच का यूज करके, प्रॉपर या फिर थ्रो करके एक्सेप्शन को इन द वाइल डिफाइनिंग द फंक्शन डेफिनेशन इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 75. इफ एक्सीडिंग द is exceeding the memory limit possible in a program despite having a garbage collector. क्या कभी मतलब मेमोरी लिमिट को एक्सीड करने का पॉसिबिलिटी होती है प्रोग्राम में अगर हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होने के बाद भी? तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल फॉर द प्रोग्राम टू गो आउट ऑफ मेमोरी. हाँ ऐसा होता है. गार्बेज कलेक्टर हमारे पास भले ही होता है बट एक लिमिटेशन होती है सिस्टम की, है ना. सिस्टम पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं और हमारे प्रोग्राम पे भी डिपेंड करती हैं, इसीलिए प्रोग्राम कभी आउट ऑफ मेमोरी जा सकता है, कुछ केसेस में जाता है. ठीक है, जनरली. तो गार्बेज कलेक्शन असिस्ट करता है रिकॉग्नाइज करने में, एलिमिनेट करने में उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नहीं है, इन ऑर्डर टू फ्री अप द रिसोर्सेज यूज्ड बाय देम. अब किसी प्रोग्राम में अगर ऑब्जेक्ट अनरीचेबल है तो एग्जीक्यूशन गार्बेज कलेक्शन का टेक प्लेस करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट. मतलब है कि अगर सपोज कोई प्रोग्राम है और उसमें हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अनरीचेबल है, प्रोग्राम वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, तो उस केस में गार्बेज कलेक्टर उसको रिमूव कर देगा, है ना. अगर ये जो अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो मेमोरी रिलीज हो जाएगी फॉर दोज ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर इन स्कोप विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर. ऐसा जनरल सिनेरियो चलता है. The memory limit is exceeded for the program when the memory released is not enough for creating new objects. नए objects को बनाने के लिए जब memory enough नहीं होती तो memory limit exceed हो जाती है उस प्रोग्राम की. Moreover, अगर हम बात करें, exhaustion of heap memory takes place if objects are created in such a manner that they remain in the scope and consume memory. अगर इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना दिए अपने प्रोग्राम में जो कि हीप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो मेमोरी कंज्यूम करते रहेंगे. So developer should make sure to dereference the object after the work is accomplished. उसको dereference कर देना चाहिए. ये एक अच्छा एक सिनेरियो यहाँ पे बताया इन्होंने कि डेवलपर, what should developer do while programming. कोई भी प्रोग्राम लिखते टाइम ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए डेवलपर के कि ऑब्जेक्ट को डीरेफरेंस कर दिया जाए उसका काम होने के बाद. Although garbage collector endeavors its best level to reclaim memory, मेमोरी को रिक्लेम करने में अपना पूरी कोशिश करता है गार्बेज कलेक्टर, एंड मेमोरी लिमिट्स स्टिल बी एक्सीडेड, राइट. वो जब भी मतलब उस इतना कुछ करने के बाद भी मेमोरी लिमिट्स एक्सीड हो सकती हैं. एंड देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. व्हाई इज सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी. सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी क्यों होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन रेलेवेंट एग्जांपल. एक रेलेवेंट एग्जांपल के साथ इसको आप एक्सप्लेन कीजिए. Concurrent execution of different processes is made possible by synchronization. हम synchronization के थ्रू concurrent execution different processes की कर सकते हैं. जब कभी कोई particular resource बहुत सारे threads के बीच के साथ share होता है, situations may arise in which multiple threads require the same shared resource. Okay, so synchronization assists in resolving the issue and resource is shared by a single thread at a time. Otherwise क्या होगा, interlocking हो जाएगी, resource lock हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पर स्टक हो जाएगा. कई बार ऐसा होता भी है. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन को प्रेफर करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ यूआरएल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू इट. आपने कितनी रिक्वेस्ट उस यूआरएल में करी है, आपको वो काउंट करना है. सो टू साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट कैन मेक अ काउंट इरेटिक. अगर आपने मतलब एक ही टाइम पर दो रिक्वेस्ट आ गई तो वो काउंट को इरेटिक कर देगा, राइट. सो नो सिंक्रोनाइजेशन का केस होता है ये. हमारे पास एक पैकेज है एनोनिमस, हम उसमें क्लास बनाई काउंटिंग एंड हमने उसमें प्राइवेट इंट इंक्रीज काउंटर वेरिएबल बनाया और उसमें इंक्रीज करके एक मेथड बनाया. इंक्रीज काउंटर इज इक्वल टू इंक्रीज काउंटर प्लस 1 रिटर्न इंक्रीज काउंटर. हम ये कर रहे हैं, ठीक है, नो सिंक्रोनाइजेशन के केस में. अब बिना सिंक्रोनाइजेशन के होगा क्या, जब थ्रेड 1 आएगा यहाँ पर तो इंक्रीज काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है. इनिशियली सपोज वो वैल्यू 10 है तो वो 11 हो जाएगी ऐड होने के बाद, ठीक है. शेयर्ड रिसोर्स है ये. साइमल्टेनियसली जब थ्रेड 2 आएगा, मतलब थ्रेड T2 आएगा, तो इंक्रीज काउंटर को हम वो 10 ही देखेगा और इनकरेक्टली उसको पढ़ लेगा इंस्टीड ऑफ 11. उसकी वैल्यू अब अभी जो है 11 हो चुकी है,
लेकिन वो अपडेट नहीं होने के कारण वो 10 ही रीड कर लेगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इरेटिक वैल्यू वहां पर इसको वो काउंट कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। अभी देखते हैं कि अगर सपोज थ्रेड T1 की वैल्यू 10 है, वो इंक्रीज हो गई बाय 1, 11 चली गई, साइमल्टेनियसली दूसरा थ्रेड आ गया, वो भी काउंट को 10 रीड कर लेगा, जो कि इंक्रीज हो चुका है, 11 हो चुका है। सो ये इनकंसिस्टेंसी जो काउंट वैल्यू में टेक प्लेस करेगी, बिकॉज एक्सपेक्टेड फाइनल वैल्यू इज 12 बट एक्चुअल फाइनल वैल्यू विल बी 11. So function increase, the function increase is made synchronized so that simultaneous accessing can't take place. अब सिंक्रोनाइजेशन के साथ कैसे चलेगा प्रोग्राम समझते हैं। हमने बनाया प्राइवेट इंट इंक्रीज काउंटर, सिमिलर टाइप का वो बनाया, मेथड बना दिया, यहाँ पर सिंक्रोनाइज बना दिया। अब इससे क्या हो रहा होगा, देखिए समझिए। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एक थ्रेड आएगा, एक्सेस करेगा, इतने दूसरा थ्रेड इसको एक्सेस नहीं कर सकता, दैट विल बी अ लिमिटेशन। ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन में थ्रेड T1 आ गया, उसने काउंटर इंक्रीज कर दी, वैल्यू कर दी 11। अब सिंक्रोनाइज्ड है शेयर रिसोर्स, तो जब थ्रेड T2 आएगा वो थोड़ा सा वेट करेगा जब तक कि T1 अपना पूरा काम एग्जीक्यूट करके बाहर ना निकल जाए, फिर T2 अराइव करेगा और वो करेक्टली वैल्यू को 11 रीड करेगा और इंक्रीमेंट करके फाइनल वैल्यू को 12 सेट करेगा। सो दैट्स द आइडिया ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 77, इन द गिवन बिलो कोड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। ये जो डॉट 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 है इसका सिग्निफिकेंस बताना है। एक फू बार मेथड बनाया, स्ट्रिंग डॉट 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 एंड वेरिएबल्स। सो एबिलिटी टू प्रोवाइड दिस फीचर कॉल्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स विच वॉज इंट्रोड्यूस एट द पार्ट ऑफ जावा 5। ये जावा 5 में आ गया था, बट कुछ जावा 8 वाले, जावा 11 वाले जो डेवलपर्स हैं उनको भी ये बात क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया जब तक किसी ने, तो वो चीज़ क्लियर कैसे होगी, राइट। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन जावा 1.8 और जावा 11, वट एवर वर्जन यू आर यूजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कंपनीज में 1.8 के लेटर वर्जन ही यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशंस में, तो ये जावा 5 का वर्जन है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का फीचर बोलते हैं। द फंक्शन हैविंग डॉट 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 is the in the above example indicates that it can receive multiple arguments of the data type string. String data type के multiple arguments receive कर सकता है। For example, the foo bar method can be called in multiple ways and we can still have one method to process the data as shown below. हम इस तरीके से उसको implement कर सकते हैं। हमने method बनाया और उसका पैरामीटर पास कर दिया foo bar, उसके बाद हमने foo bar boo पास कर दिया, देन हमने एक न्यू स्ट्रिंग करके पूरा एरे पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, एंड उसके बाद हमने माई मेथड करके डिक्लेयर किया, उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल करके, एंड देन उसके बाद बिजनेस लॉजिक यहाँ पर सेट कर दिया। हम इस स्ट्रिंग वेरिएबल पे एक लूप भी लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा करके अपना कुछ भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो जावा प्रोग्राम एंड डिफाइन द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द बिलो कोड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डज दिस कोड सेज। क्लास इंटरव्यू बिट है, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया इंट आई एंड एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया इंट जे। इसमें हमने प्रिंट कर दिया इंस्टेंस ब्लॉक 1 वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू एंड सिमिलर टाइप से जे की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी स्टैटिक बना के इस मेथड में। उसके बाद मेथड 2 यहाँ पर हमने इसको नाम दिया मेथड अंडरस्कोर 2, आई इज इक्वल टू 5 कर दिया, स्टैटिक में आई जे इज इक्वल टू 10 कर दिया। उसके बाद इंटरव्यू बिट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, वेलकम टू इंटरव्यू बिट प्रिंट कर दिया। उसके बाद मेन मेथड बनाया, उसमें इंटरव्यू बिट का ऑब्जेक्ट बना क्लास का, एंड उसके बाद मेथड 1 इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक में स्टैटिक ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ जे इज प्लस जे, एंड इस तरीके से हमने किया। देखिए बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम है, इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन ये क्या कहना चाह रहा है। इस प्रोग्राम का हमसे पूछा है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेट मी मिनिमाइज इट to get it completely on this screen. Okay, so ये हमारा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। Now let's see. Okay, कंटिन्यू करते हैं, इसके आउटपुट को समझते हैं। आउटपुट क्या मिलेगा, स्टैटिक ब्लॉक 1 वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 0। सबसे पहला हमारा जो आउटपुट मिलेगा ये मिलेगा। देखते हैं मेन मेथड में कैसे कॉल हो रहा है ये। मेन मेथड में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद मेथड 1 कॉल किया और हमने इंस्टेंस मेथड प्रिंट करा, और स्टैटिक के अंदर हमने प्रिंट करा स्टैटिक ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ जे।
यहाँ पर वैल्यू ऑफ जे क्या आई है, 0 आई है। ओके, स्टैटिक ब्लॉक 1 वैल्यू ऑफ जे इज 0 एंड फिर आया स्टैटिक मेथड, फिर स्टैटिक मेथड प्रिंट हुआ, ये मेथड प्रिंट हो गया। फिर मतलब प्रायोरिटी कैसे चली है समझते हैं, 1 मिनट रुकिए। स्टैटिक ब्लॉक 1 प्रिंट हो गया है, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर पहले प्रिंट हुआ सबसे पहले ये, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो गया दूसरे नंबर पे स्टैटिक मेथड। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 10, स्टैटिक ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू 10, ये हमारा थर्ड नंबर पे प्रिंट हुआ। उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक 1 वैल्यू ऑफ आई, देन इंस्टेंस ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ आई। ओके, इंस्टेंस ब्लॉक 1 प्रिंट हुआ फिर, ओके यहाँ पर है वो टॉप पर। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे ये प्रिंट हुआ एंड उसके बाद फिफ्थ नंबर पे स्टेटमेंट प्रिंट हुई, इंस्टेंस ब्लॉक 2 वैल्यू ऑफ आई। आफ्टर दैट इंस्टेंस मेथड एंड देन वेलकम टू इंटरव्यू बिट, इंस्टेंस मेथड प्रिंट हुआ, उसके बाद सिक्स नंबर पे हमारा ये वैल्यू प्रिंट हुई, देन लास्ट ये प्रिंट हुआ। तो हमारा ये बेसिकली हमें देखना क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। हमने मेन मेथड में, अगर हम मेन मेथड के हिसाब से चलें तो सबसे पहले मेथड 1 कॉल हुआ, मतलब इंटरव्यू बिट का ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले इंटरव्यू बिट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया मतलब इंटरव्यू बिट को इसने कॉल किया। इंटरव्यू बिट को कॉल किया सबसे पहले जो इस क्लास का स्टैटिक मेथड था, स्टैटिक, वो हमने यहाँ पर सबसे पहले कॉल उसी को गई और ये हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद इसी के अंदर मेथड 2 कॉल हो रहा है, देख रहे हैं आप, मेथड 2 कॉल हो रहा है। मेथड 2 में जाएंगे, फिर मेथड 2 हमारा ये रहा, मेथड 2 आ रहा है, मेथड 2 में हमने ये प्रिंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट में ये प्रिंट हो गया। अब थर्ड नंबर हमारा आया मेथड स्टैटिक, ये मेथड स्टैटिक जो है, फिर उसके बाद ये प्रिंट हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर देख रहा है कि पहले हमने कौन सा स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है, फिर कौन सा स्टैटिक है। अब इस स्टैटिक में आए, फिर हमारा ये वाला थर्ड नंबर पे प्रिंट हो गया। ओके, थर्ड नंबर पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे कॉल आई, इधर स्टैटिक के बाद वाला जो मेथड था, ये नॉर्मल मेथड है इंटरव्यू बिट के अंदर, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई, फोर्थ नंबर पे प्रिंट हो गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमने देखा कि उसके बाद जो देखो प्रेसिडेंस में चल रहा है, पहले सबसे पहले स्टैटिक वाला जो अकर हुआ, वो स्टैटिक के अंदर पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। फिर दूसरा स्टैटिक देखा उसने कि दूसरा स्टैटिक कहाँ पर है, वो उसने प्रिंट कर दिया। फिर ये नॉर्मल फंक्शन देखा इसने कि भाई नॉर्मल फंक्शन सबसे टॉप कहाँ पे डिफाइंड हुआ है, वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब फिर देखेगा दूसरा कहाँ पर है, कोई नॉर्मल फंक्शन है तो उसको हम कॉल करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर आए और फिफ्थ नंबर पे ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट होने के बाद सिक्स नंबर पे मेथड 1 कॉल हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा फिफ्थ नंबर पे ये जब कॉल होगा, ये नॉर्मल मेथड, तो ये वाला ब्लॉक कॉल हो जाएगा, प्रिंट हो गया। फिर मेथड 1 पे कॉल जाएगी, मेथड 1 यहाँ पर डिफाइंड है, मेथड 1 6 नंबर पे ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट होने के बाद हम देखेंगे कि लास्ट में क्या हो रहा है। लास्ट में इंटरव्यू बिट का जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर जो भी है फंक्शनैलिटी, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सबसे लास्ट में। समझने की जरूरत है। तो हमने इस आंसर में क्या समझा, हमने समझा कि सबसे पहले कॉल आएगी मेन मेथड को, मेन मेथड के हिसाब से काम चलेगा सारा। उसके बाद ये देखेगा कि स्टैटिक मेथड तो नहीं है कोई क्लास में, स्टैटिक मेथड है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद स्टैटिक मेथड पूरा ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद देखेगा कि कोई नॉर्मल मेथड है तो वो एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल मेथड होने के बाद अगर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। तो दैट विल बी द प्रेसिडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये वही चीज है कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बताया हुआ इन्होंने भी कि जावा का ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली जावा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो हम समझते हैं, हमने ऑलरेडी ये समझ लिया कि कैसे क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने डिस्कस कर लिया सारा पॉइंट्स आपके साथ। आप चाहें तो एक बारी वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं ये। वैसे अगर आपने समझा है तो उससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट वो बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, किसको पहली प्रायोरिटी मिल रही है, किसको लास्ट प्रायोरिटी मिल रही है। नाउ डिफाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे,
बीइंग अ जावा डेवलपर आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो जावा में हम समझेंगे कि जावा स्प्रिंग डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहली बात ये हम क्यों यूज करते हैं। ये हम कंसोल में मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, प्रिंट द मैसेज ऑन द कंसोल। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। कभी भी हम इसका यूज करते हैं तो ऑलरेडी ये यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है जावा डॉट लैंग पैकेज से। आउट इज द स्टैटिक वेरिएबल। ये जो आउट है सेकेंड वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है जो कि सिस्टम क्लास डॉट प्रिंट एलन जो है मेथड है प्रेजेंट इन द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। सो वी जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। एंड यहां पर हम समझते हैं कि प्रिंट एलन का मतलब क्या है। प्रिंट एलन मेथड दैट वाज प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास एंड वी कैन कॉल इट यूजिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम क्लास। यहाँ पर हमने देखा कौन कौन सी क्लास से हमने यहाँ पर यूज किया है ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला है सिस्टम डॉट लैंग पैकेज के अंदर की सिस्टम क्लास, एंड उसके बाद सिस्टम प्रिंट स्ट्रीम क्लास का हमने यहाँ पर यूज किया आउट के लिए, आउट वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल, एंड सिस्टम क्लास डॉट प्रिंट एलन मेथड है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास में प्रेजेंट होता है। तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट, हम बोल सकते हैं कि इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द कंसोल वी नीड टू कॉल द प्रिंट एलन मेथड दैट वाज प्रेजेंट इन द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, कैन यू एक्सप्लेन द जावा थ्रेड लाइफ साइकिल। जावा की थ्रेड लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ठीक है जी, करते हैं। जावा थ्रेड लाइफ साइकिल इज एज फॉलोज। सबसे पहले न्यू, व्हेन द इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड इज क्रिएटेड एंड द स्टार्ट मेथड हैज नॉट बीन इन्वोक्ड। जब कभी हमने थ्रेड के इंस्टेंस को तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, थ्रेड का इंस्टेंस क्रिएट किया और स्टार्ट मेथड इन्वोक नहीं हुआ, तो वो उसकी स्टेट होगी न्यू। थ्रेड इज कंसिडर्ड टू बी अलाइव, जो थ्रेड है उस टाइम अलाइव रहेगा और उसकी स्टेट कहलाएगी न्यू। नेक्स्ट इज रनेबल। एक बार स्टार्ट मेथड इन्वोक हो गया तो रन मेथड से पहले, बिफोर द रन मेथड इज कॉल्ड बाय जेवीएम, द थ्रेड इज सेट टू बी इन अ रनेबल और रेडी टू रन स्टेट। दिस स्टेट कैन ऑल्सो बी एंटर्ड फ्रॉम द वेटिंग और स्लीपिंग स्टेट ऑफ द थ्रेड। मतलब अगर कभी थ्रेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो न्यू स्टेट में ही रहेगा, न्यू स्टेट के बाद ही रनेबल में आएगा, वो अगर वेटिंग में है या स्लीपिंग स्टेट में है तो भी वो रनेबल स्टेट में आ सकता है। वो कब आता है? बेसिकली जब रन मेथड कॉल होता है तो थ्रेड रनेबल में आ जाता है। रनेबल स्टेट का मतलब है रेडी टू रन, रन होने के लिए वो रेडी है। अब बात करेंगे रनिंग। जब रन मेथड कॉल हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, तो थ्रेड स्टार्ट्स करता है अपनी एग्जीक्यूशन एंड द थ्रेड इज सेट टू बी इन अ रनिंग स्टेट। थ्रेड हमारा रनिंग स्टेट में हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉन रनेबल। नॉन रनेबल का मतलब है ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग। जब थ्रेड अपने आप को रन नहीं कर पाता किसी भी रीजन की वजह से, होने मतलब अलाइव होता है फिर भी वो रन नहीं कर पाता, बिकॉज हो सकता है उसका जो रिसोर्स है वो बिजी हो विद अनदर थ्रेड, तो उस केस में वो नॉन रनेबल स्टेट में बोला जाता है। आइडियली आफ्टर सम टाइम ऑफ इट्स अलाइवनेस द थ्रेड शुड गो टू अ रनेबल स्टेट। कुछ टाइम के बाद वो रनेबल स्टेट में जाना चाहिए इन जनरल केस सिनेरियो। A thread is said to be in a blocked state if it wants to enter synchronized code but it is unable to as another thread is operating and that synchronized block of same code। मतलब हमारे पास कोई रिसोर्स है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, उसमें थ्रेड एग्जीक्यूट होना चाह रहा है लेकिन कोई दूसरा थ्रेड उसको बिजी रखा हुआ है उस पर्टिकुलर कोड को या रिसोर्स को, तो उस केस में ये वाला थ्रेड जो होगा वो माना जाएगा कि ब्लॉक्ड स्टेट में है। सो दैट थ्रेड इज कंसिडर्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ ब्लॉक्ड। और ये फर्स्ट थ्रेड जब तक की कंप्लीट नहीं करेगा अपना एग्जीक्यूशन, दूसरे थ्रेड को वेट करना होगा। नाउ थ्रेड इज सेट टू बी इन अ वेटिंग स्टेट इफ इट इज वेटिंग फॉर द सिग्नल टू एग्जीक्यूट फ्रॉम अनदर थ्रेड। मतलब दूसरे थ्रेड से उसको सिग्नल मिलेगा कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया, अभी तू आके यहाँ पर इस रिसोर्स को कैप्चर करके अपना काम कर सकता है। तो अगर वो इस स्टेट में है कि वो दूसरे थ्रेड का वेट कर रहा है कि वो कब उसको सिग्नल देगा टू गेट दैट रिसोर्स, सो उसको बोलते हैं कि वो वेटिंग स्टेट में है। अब लास्ट स्टेज इसकी होती है टर्मिनेटेड। एक बार रन मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेड इज सेट टू एंटर द टर्मिनेटेड स्टेप एंड इज कंसीडर्ड नॉट टू बी अलाइव। तो टर्मिनेटेड वाले स्टेट में ये अलाइव नहीं होता, बाकी सभी केसेस में वो अलाइव होता है। नाउ फॉलोइंग फ्लो चार्ट क्लियरली एक्सप्लेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड इन जावा।
जावा में लाइफ साइकिल समझते हैं थ्रेड की, बिकॉज थ्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए आप ध्यान से। न्यू होता है, सबसे पहली स्टेट होती है इसकी न्यू, जब हम क्या करते हैं इसका इंस्टेंस बनाते हैं थ्रेड का, बट वो रनिंग नहीं होता। उसके बाद स्टार्ट मेथड इन्वोक हुआ तो रनेबल स्टेट में आ जाएगा। रनेबल स्टेट में आने के बाद उसके बाद कुछ सिनेरियोज होंगे जब सीपीयू थ्रेड को सेलेक्ट करेगा रन करने के लिए। अगर सीपीयू ने सेलेक्ट कर लिया कि भाई थ्रेड तू रन हो जा, ठीक है, अब एक्सेस कर ले इस रिसोर्स को और अपना काम टास्क कंप्लीट करके एग्जिट कर दे, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि वो रनिंग स्टेट में है। रनिंग के बाद वो कुछ रिजल्ट यील्ड करेगा तो रनेबल में चला जाएगा, है ना। उसके बाद अगर उसने काम उसका कंप्लीट हो गया, रन मेथड टर्मिनेट हो गया, तो बोलेंगे कि टर्मिनेट हो गया, और इस केस में थ्रेड इज नॉट लाइव, थ्रेड इज नॉट लाइव, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा साइकिल। उसके बाद कुछ कुछ स्टेट्स होती हैं रनिंग के केस में। रनिंग के केस में अगर सपोज वो वेट कर रहा है, अगर अभी तक उसको रिसोर्स नहीं मिला, एक्सेस नहीं मिला, तो वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। अगर आईओ रिक्वेस्ट का इशू हो गया है तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा जब तक कि वो अपना कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। और वेटिंग के बाद दोबारा से उसको नोटिफाई किया जाएगा, रनेबल में जाएगा एंड देन रनिंग स्टेट में जाएगा। फिर आता है हमारा रनिंग से स्लीप। अगर वो स्लीप मोड में है, टाइम्ड वेटिंग मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है, तो वो स्लीप स्टेट में चला जाता है। एंड स्लीप इंटरवल जब एक्सपायर करता है तो रनेबल में जाने के बाद दोबारा से रनिंग स्टेट में आता है। सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो, और वी कैन से द साइकिल ऑफ थ्रेड। Question number 81. What could be the trade-off between the usage of an unordered array versus the usage of an ordered array? Unordered array और ordered and unordered array के बीच में जो ट्रेड ऑफ होता है वो कैसे, मतलब समझना है वो चीज़ हमें, ठीक है। सो द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग एन ऑर्डर्ड एरे इज द रिड्यूस्ड सर्च टाइम। ऑब्वियसली सही बात है कि अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे है, कोई भी सॉर्टेड डेटा लिस्ट है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये जो एक्सेस का करने का, डेटा को एक्सेस करना है, कुछ भी करना है उसमें, तो उस केस में हमारे जो फंक्शनैलिटी होंगी थोड़ी फास्टर रहेंगी, क्योंकि हमारा जो सर्च टाइम होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ लॉग एन। वेयर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है अनऑर्डर्ड एरे की वो बिग ऑफ एन होती है। सो वी कैन से दैट इट इज अ बिट slower, unordered array is a bit slower due to the increased time complexity, due to the increased search time because of its unorderedness. Now next is main drawback of the ordered array. अब ordered array का drawback क्या है, is its increased insertion time. Obviously जब increase करेगा तो उसी टाइम पर वो sort करते हुए चलेगा, ठीक है, जो कि big of n होता है। तो मतलब वही है कि किसी चीज़ की अगर कोई फायदा है तो कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि कॉन्स भी उसके होते हैं। तो उसका कॉन्स ये मिला हमें ऑर्डर्ड एरे का कि उसमें इंक्रीज इंसर्शन टाइम होता है, क्योंकि एलिमेंट को रीऑर्डर करने की ज़रूरत होती है ऑर्डर बना के रखने के लिए। हर एक इंसर्शन के बाद वो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड एरे की, तो बिग ऑफ 1 होती है। यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। Considering the above 2 points and depending on what kind of scenario a developer requires, the appropriate data structure can be used for implementation. Basically देखिए दोनों चीज़ें बनी हुई हैं और दोनों का ही कहीं ना कहीं यूज़ होता है। It depends on the real case scenario. Now question number 82. Is it possible to import the same class or package twice in Java? And what happens to it during the runtime? Runtime पे क्या होता है अगर हम कभी किसी सेम क्लास को या पैकेज को 2 बार जावा में इंपोर्ट करते हैं? तो यहाँ बेसिकली ये ट्रू है। इट इज़ पॉसिबल टू इंपोर्ट अ क्लास और अ पैकेज मोर देन वंस, हाउएवर इट इज़ रिडंडेंट, बिकॉज ऐसा रिडंडेंट होता है, मतलब है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज JVM इंटरनली लोड्स द पैकेज और क्लास ओनली वंस। इंटरनली अगर देखा जाए हमारा ये प्रोग्राम है, उसमें इंटरनली जो काम चल रहा है, JVM कर रहा है, उस केस में सिर्फ एक बार ही वो लोड करता है JVM उस पर्टिकुलर पैकेज या क्लास को। नाउ क्वेश्चन नंबर 83. इन केस अ पैकेज है सब पैकेजेस, हमारे पास कोई पैकेज है और उस पैकेज के अंदर सब पैकेजेस हैं, ठीक है। एक पैकेज हो गया आपका सपोज कॉम डॉट एक्सेल, ठीक है। इसके अंदर कोई आपने पैकेज बनाया कॉम डॉट एक्सेल डॉट P1, या आपने पैकेज बनाया, फिर एक और बना दिया P2 सिमिलर टाइप से। तो इसमें पूछा है विल इट सफाइस टू इंपोर्ट ओनली द मेन पैकेज? एग्जाम्पल, डज इंपोर्टिंग ऑफ com डॉट माई मेन पैकेज डॉट स्टार ऑल्सो इंपोर्ट com डॉट माई पैकेज डॉट माई सब पैकेज डॉट स्टार? द आंसर इज बिग नो।
बिग नो। समझिए, ऐसा देखने में लग रहा है कि भाई डॉट के बाद हमें जैसा जनरल पता होता है कि डॉट स्टार अगर हमने किया तो उसके अंदर की सारी फाइल्स इंपोर्ट हो जाती हैं, बट जावा के केस में, जावा के इंपोर्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें सारे सब पैकेज नहीं आते, हम जो सा सब पैकेज सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। So we need to understand that importing of sub packages of a package needs to done explicitly, हमें explicitly करना होता है। Importing the parent package only results in the import of classes within it, मतलब जो पर्टिकुलर जो हमारा पेरेंट पैकेज होगा उसके अंदर जो भी क्लासेस होंगी सिर्फ हम उनको ही एक्सेस कर पाएंगे। हम उसके अंदर की जो सब क्लासेस हैं उसके अंदर, सॉरी सब पैकेज हैं उसके अंदर जो क्लासेस हैं हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई द आंसर इज बिग नो। इंपोर्टिंग, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके पर्टिकुलर मेन पैकेज के अंदर सब पैकेज को भी इंपोर्ट करके उसकी क्लास को इंपोर्ट करने की जरूरत होती है whenever we want to use it. Question number 84. Will the finally block be executed if the quote system.exit 0 is written at the end of the try block? No, it will not execute. ये हमने भी ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये क्वेश्चन, बट एडवांस लेवल में इन्होंने डाला हुआ है, सो इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। समझते हैं दोबारा से। हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है एंड फाइनली ब्लॉक है। इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लास्ट स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट एग्जिट 0 कर देते हैं तो उस केस में क्या फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। हमने ये देखा था कि फाइनली हर केस में एग्जीक्यूट करता है, बट एक एक्सेप्शनल केस होता है जब सिस्टम डॉट एग्जिट एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में फाइनली एग्जीक्यूट नहीं करता। और यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछा है। कंट्रोल प्रोग्राम का सिस्टम डॉट एग्जिट 0 के बाद इमीडिएटली चला जाता है एंड प्रोग्राम वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए फाइनली ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता इस केस में। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कर इंटरफेस इन जावा? जावा में आप मार्कर इंटरफेस से क्या समझते हैं? मार्कर इंटरफेस को हम टैगिंग इंटरफेस भी बोलते हैं एंड दीज आर दोज इंटरफेसेस दैट हैव नो मेथड्स। इनमें कोई मेथड नहीं होता और कॉन्स्टेंट नहीं होते डिफाइंड इन देम। They are there for helping the compiler and JVM to get runtime information regarding the objects. मतलब JVM को runtime information देने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको कमेंट सेक्शन में करने के लिए बताया था कि डेमन थ्रेड क्या होता है जावा में। डेमन थ्रेड को समझते हैं। डेमन थ्रेड इन जावा इज़ अ लो प्रायोरिटी थ्रेड, ठीक है। डेमन थ्रेड की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 86 से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं लास्ट में ये समझाता हूँ आपको डेमन थ्रेड क्या होता है। डेमन का मतलब है कि ये लो प्रायोरिटी का थ्रेड होता है। इट इज अ लो प्रायोरिटी थ्रेड इन जावा दैट परफॉर्म द बैकग्राउंड ऑपरेशंस। ये बेसिकली बैकग्राउंड ऑपरेशंस करता है, इसलिए इसको डेमन नाम दिया गया है। बैकग्राउंड में काम करता है, इसका पता नहीं चलता किसी को। जैसे कि गार्बेज कलेक्शन करना, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन करना, फाइनलाइजर, एक्शन लिसनर एंड सिग्नल डिस्पैचर्स, वो सारे जो बैकग्राउंड में टास्क हो रहे होते हैं वो डेमन थ्रेड करते हैं। ये बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह होता है जो कि यूजर थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड करता है। यूजर थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है ये बेसिकली। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।